Good morning, students. I am back with the retained activities of lesson number 1.4. In the previous class, we have done with the retained activities of page number 16 and 21. And you all know, children, that in the yesterday's video, we have studied about the types of sentences. That was just a revision before this activity. So please see on page number 22. We are given question number 3, A, B, C we have done already. And fourth question is again omitted. I am back with activity 5, types of sentences. This one. Here if you see, we are in types of sentences, we are given an activity to study these sentences. If we study these sentences, I just read out. Revati was a student of music. The flowers were big and brightly colored. Indeed, they were requested to believe her. ये सभी क्वेश्चंस जो हैं इसमें लास्ट में फुल स्टॉप है. एंड वन मोर थिंग यू शुड नोट हियर इज all these sentences begin with some subject. So subject, then verb, and then object. These types of sentences are called as assertive sentences or declarative sentences. Easy तरीका इसको पहचानने का यह है कि इसमें लास्ट में फुल स्टॉप होगा और स्टार्टिंग इसकी किसी भी सब्जेक्ट से होगी, नाउन होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में बिफोर द वर्ब. So these types of sentences are called as assertive sentences or declarative sentences. Assertive or declarative sentences. Next सेट बी में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो sentences सभी में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है. There are some questions. Wasn't Revati a student of music? How can we doubt her? Do plants have ears? तो ये सारे sentences में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. And such type of question sentences are called as interrogative sentences. इसको हम बोलते हैं interrogative sentences. तो interrogative sentences में क्या होगा, लास्ट में एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा. इससे हम इजीली पहचान सकेंगे कि जब भी क्वेश्चन मार्क एंड में दिया है यानी कि ये क्वेश्चन टाइप है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सेट सी में हम देखेंगे ये जो सेंटेंसेस बिगिन हो रहे हैं, प्लीज बिलीव मी, let us watch the fun, sit straight, excuse me. In these sentences we see there is no subject. इसमें सब्जेक्ट नहीं है. लास्ट में इसमें भी फुल स्टॉप है, असर्टिव में भी फुल स्टॉप था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोनों में. असर्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट रहते हैं और इम्परेटिव सेंटेंसेस जो ये वाले सेंटेंसेस इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, they are requests. Just move to the next page. They are either requests or appeals or commands or suggestions. इस टाइप के sentences जो होंगे they are called as imperative sentences. ये हमने कल के वीडियो में भी किए थे. This is just I am revising as it is given in your textbook in short. Set D के sentences देखेंगे हम. How big and bright the flowers are. What a surprise! Ah, what beautiful music that is! In all these sentences of set D हमको end में दिख रहा है कि exclamatory mark है. exclamatory mark है इसमें, इसलिए ये exclamatory sentences हैं. इसमें हमको how, what ऐसे words दिख रहे हैं, तो please don't misunderstand them as questions, as interrogative sentences. इफ़ यू सी द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हाउ, वॉट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, वेराज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में ऐसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स क्वेश्चन जो WH वर्ड है हाउ, वॉट इसके बाद में नहीं आते हैं. एंड हेंस दिस इज अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ऑल दीज विच एंड अप विथ exclamatory mark are called as exclamatory sentences. So now here we have to do an activity to identify the types of sentences. If you see here, state the kinds of sentences. First one, how happily she played the violin. First sentence है, ending में हम देख रहे हैं यहाँ पे exclamatory mark है
और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क इधर यहाँ पे दिया हुआ है, एंड हेंस दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दे ऑल बेंट टुवर्ड्स हर, लास्ट में फुल स्टॉप है। अब फुल स्टॉप में या तो ये असर्टिव होगा या इम्परेटिव होगा, तो दे ऑल, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक हियर, दे ऑल बेंट टुवर्ड्स हर, ऑल बेंट, दे सब्जेक्ट है इसमें, सब्जेक्ट है मीन्स ये असर्टिव सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस हम देखेंगे, डोंट प्ले दैट क्विक ट्यून। डोंट से शुरू हो रहा है, ये वर्ब है डोंट, और इसलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है, एंड हेंस दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस हम देखेंगे, शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट। यहाँ पे फिर से फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट है ये सेंटेंस में, शी सब्जेक्ट है इसका, एंड देयरफॉर दिस इज अगेन एन असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 5, हाउ कैन प्लांट्स एंजॉय म्यूजिक। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हेंस दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सी चीज़ पहचान रखना। नेक्स्ट, हाउ प्राउडली डिड रेवती कैरी होम हर प्राइज। दिस सेंटेंस, यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, हेंस दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेवेंथ नंबर, व्हाट कुड हैव टेकन माई sorry, it should be what could have taken my plants, so here the answer is again question mark दिख रहा है यहाँ पे, तो ये interrogative sentence। लास्ट वाला 8th sentence, the organizers were not convinced, full stop है लास्ट में, and hence this is an assertive sentence। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन मार्क रहा तो इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी मार्क रहा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और अगर फुल स्टॉप है और सब्जेक्ट है तो असर्टिव, फुल स्टॉप है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से बिगिन हो रहा, तो दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को पहचानेंगे। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है, मेक्स फॉलोइंग नेगेटिव यूजिंग द नेगेटिव वर्ड्स। इफ गिवन इन द ब्रैकेट में हमको नेगेटिव वर्ड्स दिए हैं, उसको यूज़ करके हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके बारे में भी नेगेटिव क्या होता है, असर्टिव क्या, अफर्मेटिव क्या होता है, ऑलरेडी वी हैव डन इन एन एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 16। नॉट वाले जो सेंटेंसेस रहेंगे उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, जिसमें नॉट नहीं रहेगा वो अफर्मेटिव रहेगी। तो यहाँ पे हमको 2 एक्टिविटीज़ दी हैं, 6 और 7। 6th एक्टिविटी में हमको नेगेटिव से अफर्मेटिव में सेंटेंसेस को करना है। सो विल जस्ट गो थ्रू द सेंटेंसेस। देयर वेयर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड। ब्रैकेट में हमको दिया है नॉट मेनी, यानी नॉट मेनी वर्ड यूज़ करना है, और वो यूज़ करके हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। सो हियर आई हैव गिवन यू द नेगेटिव सेंटेंस, देयर वेयर नॉट मेनी पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड। फ्यू का हमने ऑपोजिट लिए, यहाँ पे मेनी करे और नॉट लगा दिए। रिमेंबर, अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से अफर्मेटिव जब भी हम चेंज करते हैं, मीनिंग उसका चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, यानी हम नॉट लगाएंगे नेगेटिव में, और जो भी वहाँ पे हमको पॉसिबल एडजेक्टिव दिखेगा हमको, या वर्ड दिखेगा जिसका हम ऑपोजिट ले सकते, उसको हम एंटोनिम लेकर सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है, दे लुक्ड हेल्दियर दैन अदर प्लांट्स। यहाँ पे हमको नॉट एज हेल्दी एज यूज़ करना है। सो दे डिड नॉट, लुक्ड है करके पास्ट टेंस, दे डिड नॉट लुक एज, सॉरी, द अदर प्लांट्स डिड नॉट लुक एज हेल्दी एज देम। यहाँ पर ये सेंटेंस में ध्यान रखना है हमको कि हमने क्या किए, जो अदर प्लांट्स थे उसको पहले लाए और बाद में हमने दे वाले को लाए, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज किए यहाँ पर हमने। रिमेंबर दिस, एंड देन वी हैव चेंज। तो नेगेटिव लाने के समय दे लुक्ड हेल्दियर देन अदर प्लांट्स, यानी ये वाले प्लांट्स ज़्यादा हेल्दी हैं दूसरे प्लांट से, इसलिए हम बताएंगे कि अदर प्लांट्स जो हैं, दूसरे प्लांट जो हैं, वो इससे हेल्दी नहीं है नेगेटिव वर्ड में। सो अदर प्लांट्स आर नॉट, डिड नॉट लुक एज हेल्दी एज देम। दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड सेंटेंस। शी रिफ्यूज टू शेयर हर सीक्रेट। रिफ्यूज के बदले हमको वुड नॉट यूज़ करना है, सो शी वुड नॉट एक्सेप्ट। रिफ्यूज का ऑपोजिट एक्सेप्ट, शी वुड नॉट एक्सेप्ट टू शेयर हर सीक्रेट। इस प्रकार से आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ वन,
शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरीवन, फोर्थ सेंटेंस हम देखेंगे, शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरीवन अबाउट हर प्लान्स। हमको यहाँ पे नो वन यूज़ कर सकते हैं हम, या डिड नॉट, कोई भी ऑब्लिक दिया है बीच में ना, कोई भी एक दो उसमें से पेयर ऑफ वर्ड जो है, डिड नॉट यूज़ करो या नो वन यूज़ करो, और इससे हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। सो आई हैव यूज्ड हियर डिड नॉट। शी डिड नॉट ओमिट एनी वन, एवरी वन यानी को पूछी उसने, यानी किसी को भी छोड़ी नहीं। सो शी डिड नॉट ओमिट एनी वन व्हेन शी वेंट अराउंड आस्किंग अबाउट हर प्लान्स। तो इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाए, जो ब्रैकेट में वर्ड दिया था उसको यूज़ करके। कमिंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 7। हियर यू आर गिवन सम नेगेटिव सेंटेंसेस और इसको हमको अफर्मेटिव बनाना है। देयर वॉज नो ब्रीज, हार्डली वर्ड दिया है हमको, हार्डली यूज़ करके इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सो सी हियर, there was hardly any breeze. This is what I have used here for the sentence. There was hardly, no हटाए हमने और hardly any breeze. Second one, their ridicule did not deter her. Did not deter her, उसको पॉजिटिव बनाएंगे, their ridicule failed to deter her. Her mother knew nothing about it. Knew nothing यानी कि denied to know anything, that's the opposite. To know, sorry, denied was यूज़ करके हमने इसमें यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में कन्वर्ट किए। द लास्ट वन, शी डिड नॉट गिव अप, शी रिफ्यूज्ड टू गिव अप। तो जब भी हमने पॉजिटिव अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए, उसमें से नॉट हटाना है, और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाते समय नॉट हमको लगाना है। This way we form the sentences from affirmative to negative and vice versa. That's all for today. Thank you. Have a nice day.